Assalamu alaikum. Welcome to 101 Incredible Women CEOs of Pakistan. Today we have Humaira Mumtaz with us. She is CEO of Empower I. इनका एक्सपीरियंस है 15 years का इन बिजनेस डेवलपमेंट. बहुत से लोगों की हेल्प करती हैं उनके बिजनेस को स्टैंड करने में, उनके स्टार्टअप को एक रोड मैप देने में, और ये PhD भी कर रही हैं बिजनेस डेवलपमेंट में. आइए इनसे मिलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. वेलकम टू 101. Thank you so much. I'm honored to be here in this wonderful थैंक यू सो platform. मच. आप इस्लामाबाद से जी. हमारे प्रोग्राम के लिए आई हैं. आपका बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. I'm honored कि आपने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म जो हमें हमारे लिए रखा है, और I feel very important for coming here. थैंक यू. सो आप हमें अपनी एम्पावर आई के बारे में बताइए. जी, व्हाट इज जी. एम्पावर आई? Okay. Actually, I'm just introducing myself. My name is Humaira, and I am business consultant, educationist also, and like more than 15 years of experience in business development and business consultancy also. I have experience of corporate and academia, both nationally and internationally. And compiling all these experience, last year I ended up myself with a venture with the name of Empower I. So this venture actually is the lead of the society, in a sense that I am providing the platform for all those women and youth who are actually looking for to start some business, and those who are having the passion to start their startups and all these things. So here I stand as an Empower I, CEO of Empower I. So I help them out in developing their businesses. I help them out to giving them the roadmap, because most of the people, when they're starting their business, they don't have the roadmap and they don't have the vision of you it. develop a business model for them. Yes, business model for them, and even those businesses, those who are having some problem. So here also I help them out as a business analyst to solve their problem. Right. Yeah. Excellent. So abhi tak how many business maps you have made for the women? Actually, if I'm talking about the academia sector, I have supervised almost more than 100 student startup projects, and also I am helping more than 100 women also in developing their businesses. In terms of I am just giving them the knowledge, educating them through knowledge, and also I am enhancing them through creativity and innovation. I help them out that how they are going to input their creativity into that business. And the last one is the empowerment, in terms of giving them the training and mentoring session to help them out for their So goal. how did you start it? Like what comes in your mind at that Yeah. time? Actually, I was abroad 4 years back when I came here, and I was looking for a, in fact, job. I could not be able to find a right job for me because, the situation and the COVID situation, all those things. So, sometimes this jo COVID ki jo situation hoti hai na, it becomes, blessing for many of, people here. So, same here. So when I was looking for a job, couldn't be able to find the right job for me. So I was thinking that I should work on that project in which I can empower myself and empower others also. So this That was the motivation yes, behind that was the motivation behind it. And also when I was moving in my circle, social circle, I have seen the businesswomen over there. They are doing a brilliant job. They are doing a good businesses. But the thing is that they don't have the clear vision in their They mind. struggle to take that exactly. business to the next level. Because they don't have the vision, they don't have the right roadmap for that. So that gap, I felt it at that time. So what do you do? Do you give them classes or do you consult them? Actually, yes, I consult them also. I give my consultancy. It depends upon their need. Because the client needs, if they want from me that
they want the complete solution of their business. So I either give them the complete profile of their business. I develop for them the complete profile, including all the vision, mission, values, objectives, marketing plan, financial plan, and all those things. Some businesses, they just want only financial help, so I assist them in the financial also. Okay, Yes. so there is some rules or some. There is not there, this is just a roadmap that they have to follow No, it. I'm talking about the financial assistance. Yeah. So उसमें ऐसा क्या मतलब वो आप देती हैं? जी, जी. So will they लेकिन give you बहुत some? इम्पोर्टेंट होता है बिजनेसेस के लिए फाइनेंस को मैनेज करना. बहुत सी खवातीन. So you guide them for the bank side, banking side. I am actually my role is like a mediator. I help them out to give them the right direction, that where they have to go for the financial help. Okay. And how they are going to manage their finances. This is also very important. The education of that, and also the education of the marketing plan is very important, because यहाँ पे बहुत सी खवातीन ऐसी हैं ना जो businesses तो शुरू कर देती हैं अपने perspective से शुरू करती हैं. वो दूसरों के perspective, clients के perspective से नहीं शुरू करती. वो ये सोचती हैं, आपने देखा होगा अभी आप कितनी खवातीन है वो कहती है कि मेरा ये पैशन है और मेरा ये जो है इंटरेस्ट है और मैं बहुत अच्छी बेकिंग करती हूँ, मैं बहुत अच्छी डिज़ाइनर हूँ, आई शुड गो विद दैट बिजनेस. बट द थिंग इज, इन रियल फैक्ट यू हैव टू सी दैट व्हाट इज़ इन द मार्केट डिमांड. आपको मार्केट की डिमांड देखनी चाहिए. यहाँ पे मोर देन थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं जो कि ड्रेसेस के होते हैं, जो कि ज्वेलरीज की खवातीन मैनेज कर रही होती हैं, जो कि और भी इस तरह के जितने भी खवातीन से क्रिएटिव आर्टिस्ट होती हैं, जो भी होती हैं, बट वो मार्केट की नीड को अंडरस्टैंड नहीं करती. तो यहाँ पे उनको हेल्प आउट करती हूँ कि आपने इस मार्केट में अपनी चीज़ों को किस तरह प्रेजेंट करना है. ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना. वो कहते हैं ना, राइट प्रोडक्ट फॉर द राइट मार्केट. ये बहुत ज़रूरी थी, इसका नॉलेज होना. So I'm helping them out, find out the right, target market for them. So एक कहा जाता है कि man or woman on the right job. और वो sometimes कहा जाता है इसलिए कि वो उसके interest से match करता है. तो इसमें if they go for the market needs, तो क्या उनकी वो performance उसमें उतने % चाहती है? आप उसमें हेल्प करती हैं कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो मार्केट टारगेट जो वो कर रही हैं वो हेल्प आउट करती हैं कि नहीं करती. बिल्कुल ऐसा ही है कि फॉर एग्जांपल मेरा पैशन है बिजनेस कंसल्टेंसी का. ठीक है, मैं प्रोवाइड कर रही हूँ एक नीश में, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, कराची या लाहौर में मैं कर रही हूँ. थ्रू माई एक्सपीरियंस मुझे ये पता चला कि मेरी लाहौर में मार्केट डिमांड नहीं है, तो मैं अपनी सर्विसेज वहाँ पे नहीं दूंगी. मैं अपनी सर्विसेज इस्लामाबाद में ज़्यादा दूंगी, बिकॉज मुझे वहाँ की नीड ज़्यादा, मुझे वहाँ पे ख़वातीन ज़्यादा मुझे अप्रोच कर रही हैं, या वहाँ पे लोगों की ज़्यादा डिमांड है इस चीज़ की. इसी तरह देखिए, पैशन तो है ना मेरा, वो चीज़ उस राइट मार्केट में मैंने हिट करनी है. इसी तरह मैं ख़वातीन को भी यही कहती हूँ कि अगर आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग का शौक़ है, आपको अगर कुकिंग का शौक़ है, अगर आपको किसी भी तरह से भी कोई बिजनेस आपने रन, कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रही हैं, तो आप ये ज़रूर देखें कि आप जिसको प्रोवाइड करें उनको वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है. अगर वहाँ पे नहीं है तो आप किसी और जगह टारगेट मार्केट कर लेना. एक स्पेसिफिक एरिया पे आप ना करें ना. कुछ ख़वातीन होती हैं कि हमने बिज़नेस शुरू किया है अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने कम्युनिटी में, उससे आगे वो बढ़ती नहीं है. तो उनका जो ग्रोथ ऑफ बिजनेस है वो वहीं पे भी स्टैटिक रहता है. तो आप देखिए ना, पाकिस्तान में अभी तक 1% वुमेन एंटरप्रेन्योर क्यों हैं? इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि वो अपने बिजनेस को अपग्रेड नहीं कर रही हैं. वो अपने बिजनेस को सिर्फ अपने फैमिली तक, अपनी कम्युनिटी तक, या अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन तक महदूद रखती हैं. अगर उनका वही टैलेंट एक्सपेंड करे, रीजन वाइज करे या नेशनली करे, इंटरनेशनली, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए. सो मैं हाँ, मैं हेल्प करती हूँ कि हाँ, आपकी प्रोडक्ट की जो नीड है ना, वो इस मार्केट में आपको वहाँ टारगेट करना चाहिए, चाहे वो इंटरनेशनली क्यों ना हो. आप देखें ना, पाकिस्तान के जितने ड्रेसेस इंटरनेशनली पसंद किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बड़ी लिमिटेड मार्केट है. अगर कोई उस मार्केट को हिट करेगा तो वो कहाँ से कहाँ अपना बिजनेस ले जा सकता है. अच्छा, while reading your profile and watching your different interviews, उसमें मैंने एक देखा कि आप एक स्कूल में गई हुई हैं जहाँ यंग बच्चों को सिखा रहे हैं, और उसमें आप भी उनकी हेल्प कर रही हैं. वो क्या है? वो एक्चुअली लास्ट
14 अगस्त का वो प्रोग्राम था, वो था एक एको हाउस, एक थी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने अरेंज किया था। उसमें जितने भी वो जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं उनको वो सपोर्ट देने के लिए, कि उनको एजुकेशन देने के लिए कुछ ना कुछ हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो उस सिलसिले में उन्होंने मुझे एज अ गेस्ट बुलाया था, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा इन अ सेंस कि आप देखें उनके बच्चों के चेहरों की जो मुस्कुराहट है उस जगह पे बैठ के, एग्जैक्टली। तो मैंने उनको काफ़ी मोटिवेट किया, वहाँ पे उनको गिफ्ट्स दिए, वहाँ पे बहुत खुश हुए। हालांकि आप देखें स्ट्रीट चिल्ड्रन की क्या नॉलेज होती है बेचारों की, उनकी क्या एजुकेशन होती है, उनको कोई सेंस नहीं होती, उनको ये भी सेंस नहीं होती उन्होंने क्या पहना है, क्या खाया है, क्या कपड़े पहने हैं, कि कौन सा कलर है। आई मीन दे आर टोटली ब्लाइंड। और वो और पूरे कोई सेंस नहीं है। तो उन बच्चों में अवेयरनेस दिलाना, एजुकेशन का के उस पर हेल्प आउट करना। तो आई थिंक सो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू फॉर द सोसाइटी, फॉर स्पेशली फॉर द स्ट्रीट चिल्ड्रन, बिकॉज वो डिज़र्व करते हैं। ये उनकी स्टेज है ना कि हम उनको प्रोवाइड करें, किसी न किसी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करें। So in your journey, what was the biggest challenge for you, especially in Pakistan? चैलेंजेस तो हर जगह होते हैं हमारे यहाँ, ये तो आप कह नहीं सकते कि आज आप चैलेंजेस से जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस एंड दैट you should be well prepared for all these for every challenge. Obviously क्योंकि मेरा जो जर्नी और एक्सपीरियंस है ना हमारी, वो इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर। कभी मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने काम किया, कभी मैंने एकेडेमिया में किया, तो इट्स लाइक कभी अप एंड कभी डाउन होता रहता है। Which one is your favorite? I think so both. I like both combination because उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ है ना, because education is very important for any country or for any society. So being an educationist also, मैं खुद भी अभी भी जो है वो PhD कर रही हूँ, तो मुझे इस चीज़ों का बहुत, यानी कि इस चीज़ों की इम्पोर्टेंस का बहुत ज़्यादा मैं वैल्यू करती हूँ। और मैं समझती हूँ कि जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो अपनी जो स्पेशलाइजेशन है, अपनी एजुकेशन को राइट पर्पस के लिए यूज़ करें। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ख़वातीन से जब मिलती हूँ और वो उन्होंने मास्टर्स किया होता है हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंसेस में, किसी ने क्या किया होता है, लेकिन वो क्या कर रही होती हैं, वो घरों में बैठी अपना टाइम वेस्ट कर रही होती हैं, कुछ नहीं कर रही होती हैं। अगर कुछ करना भी होता है थोड़ी सी बेकिंग स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है ना। तो मैं ये आजकल होममेड बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, वो स्टार्ट कर, होममेड होगी, ये वो जो आर्ट्स की चीज़, ज्वेलरी को डिज़ाइन कर लिया, घर में बैठ के जो भी ख़वातीन कर सकती हैं करें। बट द थिंग इज़ कि देखें आपने किस चीज़ की एजुकेशन ली है, आप IT एक्सपर्ट हैं ना, तो आप कितनी सर्विसेज, आप देखें पूरी दुनिया में IT इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ चली गई है। हमारे यहाँ पे जितने भी IT ग्रेजुएट्स हैं वो उस लेवल तक नहीं पहुँच पाए हैं, और ये सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न देगी ये सर्विसेज और ये इंडस्ट्री। सो आप अपनी उसी चीज़ों को एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके आप सोसाइटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम क्यों रिलाई कर रहे हैं बाहर के लोगों के लिए, आईफोन के लिए हम उस पर रिलाई कर रहे हैं, हम क्यों रिलाई कर रहे हैं, वहाँ से कोई ऐप आएगी तो हम यूज़ करेंगे, वहाँ से कोई सोशल मीडिया आएगा तो हम क्यों नहीं खुद से डेवलप कर रहे हैं। आप देखें हमारी नेबर कंट्री है चाइना में सब चीज़ें उन्होंने खुद डेवलप की हुई हैं। दे डोंट केयर फॉर गूगल, दे डोंट केयर फॉर व्हाट्सएप, दे हैव देयर ओन सोशल मीडिया, ठीक है ना। सो हमें भी एज अ कंट्री, और जितने भी ग्रेजुएट हैं यहाँ पे, IT के एक्सपर्ट हैं या इंजीनियर्स हैं, जो भी हैं, डॉक्टर्स, इवन डॉक्टर्स भी, आप देखें मेडिसिन में भी अब हेल्थ टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो सिर्फ इस चीज़ पे फोकस है कि हमने स्पेशलाइजेशन करके क्लिनिक ही खोलना है। हेल्थ इनोवेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हेल्थ टेक जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो हम अगर उन पर्सपेक्टिव्स को लेकर, हमारे यहाँ तो देयर इज़ अ पोटेंशियल, हमारे पाकिस्तान में तो इन चीज़ों पे काम ही नहीं हुआ। हाँ, लेकिन माशाल्लाह टैलेंट बहुत है, टैलेंट तो बोले काम किसी ने नहीं किया ना, इनिशिएटिव किसी ने लिया, क्योंकि हम सबका एक ऑर्थोडॉक्स किस्म का माइंडसेट है। हम उसी पे बिलीव करते हैं कि हमने पढ़ना है, अगर डॉक्टर है तो उसने पढ़ना है, तो उसने स्पेशलाइजेशन करनी है एंड उसने क्लिनिक में बैठ के कमाना है, उससे आगे हमारी सोच नहीं है। इसके अलावा अगर हमने इंजीनियर बनना है तो हमने एक अच्छी जॉब लेनी है और हमने इस तरह से मूव करना है। नहीं, हर एक का एक सेट टारगेट है।
हमें से कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोच रहा, हालांकि आउट ऑफ द बॉक्स में कितनी चीजें हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही आप सोचने में बैठे तो एक छोटी सी चीज की आप क्या से क्या बेतहाशा बना देते हैं। you आपको कोई have प्रॉब्लम ideas. देखिए, हम अनॉयड होते रहते हैं ना हमारी ये प्रॉब्लम से कि हमें ये प्रॉब्लम है, अच्छा इस माइक में ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ में ये प्रॉब्लम है। अब उन्हीं प्रॉब्लम्स में से आपको सोल्यूशन एंड बिजनेस आइडियाज़ मिल जाते हैं। दुनिया तो इसी तरह मूव करती है ना कि हम फॉर एग्जांपल ये व्हाट्सएप का जो कॉन्सेप्ट है टेक्स्ट मैसेजिंग का था, पहले वक्तों में कितना मुश्किल होता था टेक्स्ट करना, उसी प्रॉब्लम को लेके लोगों ने आगे से ये ऐप्स वगैरह जो हैं इनिशिएटिव लिए हैं लोगों ने। इसी तरह हमारे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम अपनी उन प्रॉब्लम से निकल के कुछ ऐसी चीज़ नहीं बना सकते, हमारे अंदर तो बहुत टैलेंट है। So we should stop complaining and do something. Exactly, true. I believe in that. So I'm trying my best कि मैं इस तरह से आइडियाज़ दूँ स्टूडेंट्स के भी। जब भी मुझे यूनिवर्सिटीज़ में मौका मिलता है मैं जाती हूँ वहाँ पे, आप उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में हेल्प करती हैं उनको मेंटोरशिप के लिए भी प्रोवाइड, डिफरेंट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी उनको हेल्प आउट करती हूँ। उनके जो ये पिच कंपटीशन स्टार्टअप्स के होते हैं उनमें एज अ जज उनको अपनी जो है इनपुट देती हूँ और सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। ये सब चीज़ें मैं हेल्प आउट करती हूँ। आपका व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स? My future goal is that I believe in innovation and I will work till my death to the innovations. कि मैं कोई ना कोई इनोवेशंस इस सोसाइटी के लिए लाऊं जो हेल्प आउट कर सकें, इस सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। बिजनेस अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकली पाकिस्तान ग्रो करेगा। बिल्कुल वही वाली बात है ना। हम देखिए ना, आप यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे जॉब्स कम हैं, तो जॉब्स का एक ही सोल्यूशन है थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। क्रिएट जॉब्स। हाँ, आप यू हैव टू क्रिएट जॉब, यू डोंट नीड टू सीक अ जॉब, यू हैव टू क्रिएट जॉब। एग्जैक्टली। सो एक छोटा सा पैगाम for all the startups and for the women, those who are sitting and watching our program and they are planning to do something like they want to start some businesses. मैं सिर्फ एक छोटा सा पैगाम देना चाहती हूँ जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कि they have to believe in their self, they have to be very clear in of their vision, their roadmap should be very clear, they don't have to take the fear of this कि हमारा businesses जो है वो चल सकेगा कि नहीं सकेगा। They should be trained in a sense कि they should take a risk and they should learn from the failure क्योंकि failures ही आपको the step towards your success. This is what I want to give the message to all of them. Thank you so much, Ms. Humaira. आपकी इतनी दूर से यहाँ आने का और हमें इतनी अच्छी बातें बताने का thank you so much. Thank you so much. Nice to meet you. It's honor for me to be in this platform. Wish you all the best of luck for your future ventures. Thank you. Allah Hafiz.